Hello everyone, welcome to our channel Chemistry Academy for IIT JEE and NEET। मेंस रिविजन प्रोग्राम में आज से हम ऑर्गेनिक शुरू करने जा रहे हैं और हमारा पहला टॉपिक जो होने वाला है वो है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हमारे कई टॉपिक्स पर इफेक्ट करता है। सो लेट्स स्टार्ट विथ आइसोमेरिज्म। हाँ, पर शुरू होने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल। लेट्स स्टार्ट। आइसोमेरिज्म एक बड़ा टॉपिक है और इसे हम दो हिस्सों में करने वाले हैं। पहला पार्ट जो होगा दैट विल कवर योर स्ट्रक्चरल एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अलोंग विथ कन्फर्मेशंस। सेकंड पे हम टोटली ऑप्टिकल डिस्कस करने वाले हैं। सो पहले पार्ट में हम स्ट्रक्चरल स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्चरल स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार आपको याद दिला दूं आइसोमेरिज्म क्या होता है। तो द वर्ड आइसोमेरिज्म इज डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक, जर्मन एंड स्वीडिश। एक्चुअली इसकी काफी अलग अलग तरह की ओरिजिन है डिफरेंट लैंग्वेजेस से। इन ग्रीक आइसोस मीनिंग इक्वल एंड मेरोस मीन्स पार्ट्स। इन शॉर्ट ऐसे दो मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आइडेंटिकल हो बट उनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल कुड बी अ 2-डायमेंशनल स्ट्रक्चर और कुड बी अ 3-डायमेंशनल स्ट्रक्चर, दोनों में से कोई सा भी अगर डिफरेंट हो तो सच पेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड आइसोमर्स। And this phenomena of a same molecular formula existing into two different structures is known as isomerism. जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, आइसोमेरिज्म ब्रॉडली दो तरह का है, स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो है वो बहुत ज्यादा एग्जाम्स में नहीं आया है, चाहे वो मेंस हो या एडवांस, लेकिन 2021 में दो क्वेश्चन स्ट्रक्चरल के आए हैं। तो आइए हम ब्रीफ में स्ट्रक्चरल को रिवाइज करते हुए चलें। स्ट्रक्चरल का दूसरा नाम होता है कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स। अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स जो होते हैं ये टोटल 5 तरह के होते हैं। दे आर टोटल 5 types of constitutional isomers. First, chain, position, functional, metamerism and tautomerism. सबसे पहले chain isomerism. For chain isomerism, your approach should be whatever two molecules are given to you for comparison, first assign IUPAC name to both. And while doing IUPAC name, if you find change in root word of either the parent chain or the subsequent, then it is known as chain isomerism. For example, ये पहला मॉलिक्यूल जो यहाँ बना हुआ है, दिस इज इथाइल बेंजीन। इसी का एक और स्ट्रक्चर जो मैं बना सकती हूँ वो ये डाइमिथाइल बेंजीन। नाउ यू सी द subsequent ethyl is now split into 2 methyls, so they are chain isomers. Second example, 2-pentanol 3-methyl butane 2-all. अब यहाँ देखिए, यहाँ रूट वर्ड जो है ये पेंट था और यहाँ रूट वर्ड जो है ब्यूट है पेरेंट चेन का। So this change of root word from pent to but is generating chain isomerism. हाँ, चेन आइसोमेरिज्म चेक करते वक्त आप ये जरूर ध्यान रखें कि दोनों ही मॉलिक्यूल्स में फंक्शनल ग्रुप शुड रिमेन सेम. देयर शुड नॉट बी चेंज इन फंक्शनल ग्रुप ऑफ द टू मॉलिक्यूल्स. Second is positional isomerism. For positional isomerism, the first check that you have to do is, first, always for isomerism, compare the molecular formula of the two. Because the common approach that different exams take is, out of the 4 options, there is a strong possibility that at least one of the option might not having the same molecular formula of the two molecules given to compare. So first approach for questions of isomerism is, as a rule, compare their molecular formula. Once you're done with that, second, you have to compare the functional group of the two molecules given. Because for positional isomerism, there should not be any change in their functional group. Once you find, okay, molecular formula is also same, functional group is also same, then you go for assigning IUPAC name. And in IUPAC name, there should not be any change in the parent chain or the subsequent root word. They should again be identical. They should be same. Then only we can think of positional isomerism. For positional isomerism, the only change should be in the position of either the functional group or any subsequent
It could be an alkyl or could be a secondary functional group substrate. Any substrate position if changed in the two molecules, maintaining the same functional group, same root words, same molecular formula, then and only then आप उसे कहेंगे that yes, this pair is having positional isomerism. Let us see the examples. See these examples. In this first, I am having ortho in terms of common nomenclature. For IUPAC, I will call it 1,2 dimethyl benzene. This is 1,3 dimethyl benzene. This is 1,4 dimethyl benzene. So they are positional isomers. Example number 2, in which I am changing the position of OH. 2 pentanol, 3 pentanol, and 1 pentanol. As you can see in second example, there was change in the position of OH. So it is again positional isomerism. Then the third category is functional isomerism. As far as functional isomerism is concerned, the only point that you have to be careful about is whether there is a change in root words, there is a change in position of any substituent or a functional group, doesn't matter. If there is a change in functional group itself, then other changes we do not have to be bothered. We just consider that it is going to be a functional isomerism. Right? Molecular formula, as I said, is the first point of check. It is same. Functional group should be different. For example, let us compare this first set. This is 1, 2, 3, 4. This is 1 butanol. This is diethyl ether, or you can call it ethoxyethane. So as you can see that the both following the same molecular formula, but the only difference is in their functional group. So they are functional isomerism. Now you have to be very careful that yes, aldehyde and ketones, they are also functional isomers. Correct? Moving to next, these bottom two are very important examples. Please remember them. Please remember them. For example, this first one, in this, OH is attached to the aromatic ring sp2 hybridized carbon. So when OH is directly connected to an aromatic ring, then such compounds are called phenols. And when OH is connected to the side chain sp3 hybridized carbons, then such are called alcohols. And phenols and alcohols are functional isomers of each other. They cannot be called as chain or positional isomers. And the second important example is different degrees of amines, say primary, secondary, and tertiary. They are also called functional isomers of each other. So these two you have to remember very carefully. Alcohols and phenols are functional if the molecular formula is same, and the different degrees of amines are also functional isomers, right? It is not that the secondary suffix remaining amine, could they be chain or position? No, they have to be functional isomerism. Fourth example, or fourth type of structural isomerism is metamerism. Though metamerism is a little confusing and is not asked much in mains. In advanced, it has never been asked. In Olympiads, it has never been asked. But yes, in mains, it has been asked. So we should maintain whatever is given in NCERT, and as per it only it has been asked. So let us see what is given in NCERT. If the functional group is a bivalent matlab it should have two substituents attached to it. For example, ether, because ether can have two alkyls attached to it. It could be a ketone. See, this side and this side, both side alkyls can be attached. So such functional group can exhibit metamerism. And when it will exhibit metamerism? It will exhibit metamerism when either or both the alkyls on the two sides of this bivalent functional group should have some changes. Those changes could be in the chain, opposition, or branching. Say, for example, this first one, which is 1, 2, 3, 4. This is 1-methoxybutane. This is 2-methoxybutane. As per NCERT exemplar, this is given in
exemplar, asparate, this one is metamerism. This is again a metamer of the above two examples. In case of ketones, the common nomenclature is used to assign metamerism in them. For example, this molecule will be called diethyl ketone, and this will be called methyl propyl ketone. So as the two sides, the alkyl groups are changed, so they are called metamers. And in fact, this type is asked in mains, correct? Moving to number 5, which independently is very important and is in case of aldehyde ketones affecting lot of its properties. So tautomerism. What is tautomerism? Tautomerism is a phenomena in which we find that the two functional isomers are in state of dynamic equilibrium with each other in gaseous or in aqueous phase. Then they are called tautomers, and the phenomena is known as tautomerism. The most important example of this category as far as our exams are concerned is one and only, that is keto-enol tautomerism, in which one of the functional group has to be keto, other has to be enol. On tautomerism, we have already done a complete series of, say, 6 small 20 minutes, 30 minutes, 15 minutes portions. If you want any individual clarification on this topic, please go through it. We'll attach the links in the description of this particular video also. So for a molecule to be capable of exhibiting tautomerism, it should have alpha hydrogen. If the alpha hydrogen is totally absent, then such molecules will not exhibit tautomerism. Usual in a monocarbonyl like aldehyde ketone, the concentration of enol is extremely low, something like to the power of 10 to the minus 6%, which is negligible. So we are least bothered. But in case of 1,3 dicarbonyl compounds, the percentage of enol becomes very dominating, and based on the solvent and other conditions, it can be somewhere around 70 to 80% of the total molecular properties or molecular concentration. Now, हमसे पूछा जाता है कि in case of 1,3 dicarbonyl, what is the reason for such predominant enol content? So, the reason, आपको 3 reasons हमेशा याद रखने हैं. पहला reason in case of 1,3 dicarbonyls is we have active methylene groups. What are active methylene groups? Active methylene groups are such CH2 groups which are placed between two strong minus I and minus R groups. So due to the presence of such minus I and minus R groups, they behave relatively much more acidic as compared to any other sp3 carbon attached hydrogens. Second and most important reason for such molecules to exhibit high enol content is the extension or the generation of resonance in enol. See, is carbonyl mein original, there is no resonance between these two double bond O's. But if it goes to enol through one of the carbonyl laws, now there is resonance in this complete molecule. So this generation of resonance is the major reason why these are converting to enol. And third reason is presence of intramolecular H bonding in enol of such 1,3 dicarbonyls. See, this way there is presence of intramolecular H bonding in these enols. Now this is for 1,3 dicarbonyl, but out of the way, let me tell one more point regarding a monocarbonyl. In case of monocarbonyls, as I said, the percentage enol is the dominating one. But only and only if the enol is becoming aromatic, then this equilibrium will be mainly, rather 99.9% dominated towards the enol side. That is why in case of phenol, you hardly observe any property, or I would say almost zero property that you can point out due to its carbonyl structure. It is always its enol structure
and therefore phenol always exhibits the property of aromatic ring double bond and OH. Okay, so moving to the questions that has been asked. See, first question was compound with molecular formula C3H6O can show. Now when they say can show, the first stage or first step that you should follow is find the degree of unsaturation of such molecules. Correct? For example, in this molecule C3H6O, which is given in this particular 2021 mains question, degree of unsaturation was 1. How I calculated? If you don't remember, I have written the formula for degree of unsaturation here on the screen also. You can pause and refer. So here it is degree of unsaturation 1. If degree of unsaturation 1, so I got that there is oxygen and 1 pi bond present. Now you have to draw sequentially, like 1 pi bond and oxygen containing. The first thought that you should have is of aldehydes and ketone. So 3 carbon I started, there is propanol, propanone. There is no other possibility of carbonyl. So moving to alcohols and ethers. So this particular, right, it is vinyl methyl ether, and then this is prop 1-ene, prop 2-ene 1-ol, and this is epoxy propane, 1,2 epoxy propane. Now the question is clear that it can show. So positional isomerism, no, because the change of carbonyl from aldehyde to ketone will generate functional group isomerism, not the positional. Metamerism, no, because there is not a possibility of any change on either side of ether or a ketone functional group. So the only possibility is functional group isomerism. So this type of direct question appeared. Second question which we saw is, which of the following pair of isomer is an example of metamerism? This was also in 2021. Both questions of structural were asked in 2021 only. So which of the following is an example of metamerism? I have already told you that ketones, the two sides of alcohols, if chained, then there is metamerism. In others, no functional group, not a bivalent functional group. So the only possibility is answer 4. So that was about structural isomerism. Now let us move to stereoisomerism. In fact, stereoisomerism is more important as compared to structural isomerism. So stereoisomerism means if the two molecules have some difference in structure with respect to spatial arrangement or stereo or 3D arrangement of different atoms within a molecule, then they are called stereoisomers, and the phenomenon will be referred as stereoisomerism. Stereoisomerism दो में हम सबसे पहले divide कर रहे हैं. It is conformers, also called rotamers, or configurational isomers. Configuration is further divided into geometrical and optical, right? सबसे पहले हम इसमें कन्फर्मर्स के बारे में देखते हैं. देखिए, कन्फर्मर्स और रोटामर्स ये क्या होते हैं? Such 3D arrangement of atoms in a molecule which are interconvertible by rotation along a bond are called conformers, and the phenomenon is called conformational isomerism. जब आप दो 3-dimensional अरेंजमेंट को किसी सिंगल बॉन्ड के अबाउट रोटेट कर चेंज कर सकते हैं, एक से दूसरा, दूसरे से पहला, और ये लगातार होने वाली प्रोसेस होगी. आपको इसमें कभी भी आप किसी तरीके से किसी एक को 100% और दूसरे को 0 कर ही नहीं सकते. तो इस तरह की पॉसिबिलिटी जो होगी, इस तरह का अरेंजमेंट जो होगा, उस फिनोमेना को हम बोलते हैं कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म. और जो अलग अलग स्ट्रक्चर्स इन रोटेशन से आपको मिल रहे हैं, उन्हें हम कहते हैं कन्फर्मर्स, या फिर हम इन्हें कन्फर्मेशंस भी कहते हैं. टेक्निकली अगर हम थोड़ा और डिटेल और एडवांस में जाएं तो यस, देयर कुड बी अ डिफरेंस बिटवीन कन्फर्मर्स एंड कन्फर्मेशंस, बट नॉट रिक्वायर्ड फॉर मेंस. हम अगर दोबारा कभी एडवांस के लिए जब डिस्कस करेंगे, हम इसमें भी अंतर को डिस्कस करेंगे. आइए,
तो इनको समझने और ड्रॉ करने के लिए हम यूज करने वाले हैं न्यूमैन रिप्रेजेंटेशन। न्यूमैन रिप्रेजेंटेशन के अंदर हम क्या करते हैं, न्यूमैन रिप्रेजेंटेशन में हम मॉलिक्यूल को विजुलाइज करते हैं इस तरीके से कि फ्रंट कार्बन बैक कार्बन को पूरी तरह से ओवरशैडो कर ले, छुपा ले। दैट इज अवर फर्स्ट स्टेज। ये फ्रंट कार्बन इज ड्रॉन विद अ डॉट, बैक कार्बन इज ड्रॉन विद अ बिग सर्कल। नाउ एज वी आर अज्यूमिंग कि भाई हम कार्बन की ही बात कर रहे हैं, और वो कार्बन भी अगर मैं इस समय बोलूं तो आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट द टेट्राहेड्रल कार्बन्स। सो एक टेट्राहेड्रल कार्बन के लिए उसको 4 बॉन्ड सेटिस्फाई होने चाहिए। सो दिस फ्रंट कार्बन विल हैव 4 बॉन्ड्स। 3 बॉन्ड्स मैंने यहाँ इक्विलेटरल ट्रायंगल के 3 कोनों, 3 कॉर्नर्स की तरफ डायरेक्ट करा। 4th बॉन्ड इज विद द बैक कार्बन। सो ये 4 बॉन्ड्स हो गए इस फ्रंट कार्बन को। बैक कार्बन का जब भी आप कंफर्मेशन ड्रॉ करें, बी वेरी केयरफुल, उसके बॉन्ड्स शुड बी फ्रॉम द सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस बिग सर्कल। गलती से भी सेंटर से ना बना लें जल्दबाजी में, because that is entirely incorrect chemistry. You are showing God knows how many number of bonds for this particular front carbon. So be careful while drawing this Newman, right? So this is how you will draw Newman. Now, using this Newman, we'll discuss the conformers of ethane. But before going to that, I would like to just tell you that yes, there is one more called Sawhorse. Now, in case of Newman, we said that it is completely eclipsed, whereas in case of Sawhorse, you just incline it towards some side so that you can see the front carbon and back carbon separately, not eclipsing or overlapping. After that, again, here also, you will draw the 3 bonds of front and back on the 3 equilateral triangle corners, correct? So usually Newman is the preferred representation, but yes, you can observe or you can come along कि कहीं Sawhorse भी इस्तेमाल किया हो. Sawhorse is very easy. You can easily transfer it or convert it to Newman if you are uncomfortable with it. Otherwise, it is perfectly all right. So conformers of ethane. As I said, it is a phenomena of rotation. तो ये देखें आप, ये पर्टिकुलर ये जो स्ट्रक्चर है, ये इथेन हमने बना रखा है। ये इसका फ्रंट कार्बन, ये बैक कार्बन। जब मैं आपको इस तरीके से दिखाती हूं, आप देख पा रहे होंगे कि एक हाइड्रोजन के पीछे आप दूसरा हाइड्रोजन विजुलाइज नहीं कर पा रहे होंगे, वो एक को एक्लिप्स कर रहा है। अगर मैं इसे थोड़ा भी रोटेट करूं, ना यू कैन विजुलाइज द बैक कार्बन ऑल्सो, और उसके सबस्टेंट आपको दिखना शुरू हो जाएंगे। ये इसी तरह से कंटिन्यूअसली रोटेट होते रहेंगे ना। इस समय जो ये आपको जिस फॉर्मेट में नजर आ रहा होगा, ये है इसका स्टैगर्ड, क्योंकि आगे के जो बॉन्ड्स का वी बन रहा है, उसमें से बैक साइड का हाइड्रोजन क्लियरली विजुलाइज हो रहा है, करेक्ट? इस तरीके का जो अरेंजमेंट है। और ये देखिए, ये सिंगल बॉन्ड के अबाउट, ये सिंगल बॉन्ड बना हुआ है, इसके अबाउट ये कंटिन्यूअस रोटेट हो सकता है, राइट? इस चीज को हम कह रहे हैं कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। ये यहां से रोटेशन हो रहा है। अब इसी कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म को आइए यहाँ रिप्रेजेंट करें। हमने न्यूमैन से रिप्रेजेंट कर रखा है। ये जो स्ट्रक्चर मैंने सबसे पहले यहाँ बना रखा है एक्लिप्स्ड, ये एक्लिप्स्ड आपकी स्क्रीन पर लिखे और मॉडल दोनों में नजर आ रहा होगा। जब आप फ्रंट हाइड्रोजन के पीछे बैक हाइड्रोजन को नहीं देख पा रहे हैं, देन इट इज द एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन। अब जब मैं इस रोटेशन शुरू करती हूँ, आप ये अज्यूम करें कि मैं फ्रंट कार्बन को रोटेट कर रही हूँ, अब या बैक कार्बन को रोटेट करूं टू मैच व्हाट आई हैव रिटन इन द नोट्स। ओके, तो बैक कार्बन को रोटेट करना शुरू करा। अब आपको धीरे धीरे बैक कार्बन के बॉन्ड्स दिखना शुरू हो रहे होंगे, और जब ये एग्जैक्टली 60 के एंगल पर आ गया, ये इसके 60 के बीचों बीच से इसके 120 के बीचों बीच ये बैक साइड वाला हाइड्रोजन नजर आ रहा है, देन इट इज दिस स्टैगर्ड ड्रॉन हियर, राइट? इस पूरे कन्वर्जन ऑफ एक्लिप्स से स्टैगर्ड के बीच में डिफरेंट एंगल से जो हम गुजरे,
हमने अगर थोड़ा भी रोटेशन किया तो बैक साइड हल्का सा व्यू हुआ, फिर व्यू और फिर एक्सट्रीम। हम फर्दर करेंगे तो फिर इनके बीच एंगल कम होते होते वापस से एक्लिप्स पर चले जाएंगे। तो इन इंटरमीडिएट कन्फर्मर्स को स्क्यू कन्फर्मर्स कहा जाता है, राइट। स्टेबिलिटी जो होती है, डेफिनेटली इन दोनों कार्बन के जो बॉन्ड्स हैं, इनके रिपल्शन ही इसके अनस्टेबल होने का कारण है। सो इन रिपल्शंस की वजह से ही ये घूम रहे हैं, इनके मिनिमाइज करने के लिए ही ये पूरा फिनोमेना देखा जा रहा है। तो स्टेबिलिटी इज द वन इन विच दीज groups are at maximum possible distance, maintaining the molecule will be the most stable. Therefore, staggered is the most stable conformer of ethane. Then is the skew. Now, skew में बहुत सारी possibility होती है, but whichsoever is going to be more stable than the eclipsed. Eclipsed will be the most unstable conformer. होगा ये कि जब हम अगर एक बार इसके स्टैगर्ड कन्फर्मर में पहुंचे, तो जब ये रोटेट होकर वापस एक्लिप्स पे जाता है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ये रिपल्शन यहां पाकर तुरंत वापस रोटेट हो जाते हैं। वो क्रॉस ही नहीं कर पाते हैं उस एक्लिप्स के बैरियर को, ये ऐसे रोटेट होते रहते हैं। देयर आर वेरी फ्यू जो उस बैरियर को क्रॉस करके घूम पाएंगे। सो हम कहेंगे कि हमेशा जो मेन कॉन्सेंट्रेशन, हमेशा मेन कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इथेन की प्रॉपर्टीज में होगा, वो सबसे ज्यादा स्टैगर्ड का होगा, क्योंकि वो सबसे एनर्जी वाइज मिनिमम स्केल पर प्रेजेंट है। देन देयर विल बी स्क्यूज, वो भी वहां तक पहुंचेंगे बट फिर रिपल्शन खा गए। सो बेसिकली दे आर नॉट गोइंग इनटू परफेक्टली एक्लिप्स, but there will be some which can cross that activation barrier. So there will be presence of eclipsed, but in the minimum concentration, minimum amount. So eclipsed का concentration सबसे कम होगा, potential energy wise सबसे ज्यादा eclipsed और सबसे कम staggered। energy कम, इसीलिए stability ज्यादा। staggered conformation जो है वो करीब 12 किलो जूल्स पर मोल। बेटा ये पर मोल हम कह रहे हैं, पर मोल मतलब एवोगेड्रो नंबर। तो एक मॉलिक्यूल के लिए ये वैल्यू इज नेग्लिजिबल, इसलिए आप कितना भी टेम्परेचर कम कर दें, हमेशा एक मॉलिक्यूल को तो उतनी एनर्जी मिल ही जाएगी कि वो रोटेशन करता ही रहे। सो दिस 12 किलो जूल्स पर मोल स्टैगर्ड इज मोर स्टेबल देन एक्लिप्स्ड। तो जब भी हम स्टैगर्ड से एक्लिप्स्ड में जाते हैं, तो मॉलिक्यूल 12 किलो जूल्स पर मोल एनर्जी सराउंडिंग से एब्जॉर्ब करता है और इस रोटेशन को क्रॉस कर पाता है। इसी चीज को हम एनर्जी डायग्राम से भी बता सकते हैं। एनर्जी डायग्राम ऑफ इथेन कन्फर्मर कि अगर हमने जीरो कंसिडर किया था एंगल कि फ्रंट हाइड्रोजन और बैक हाइड्रोजन में जीरो एंगल, अगर इसे हमने जीरो कंसिडर किया, जब 60 पे रोटेशन किया तो हम मिनिमम एनर्जी पर आ गए, फिर से हमने 60 पे रोटेशन किया तो हम एक्लिप्स। ये जो कंटिन्यूअस यहाँ इस तरफ आप देखें, एक्स एक्सिस पे मैंने एंगल ऑफ रोटेशन दिखाए हैं, 60, 120, 180 एंड सो ऑन। हर 60 के एंगल पर मैक्सिमा मिनिमा आ रहे हैं, और इन दोनों के एनर्जी गैप जो है वो कितना है, 12 किलो जूल्स पर मोल। यहां जो एंगल्स का मैं जिक्र कर रही हूं वो एंगल ऑफ रोटेशंस हैं। एक और चीज जो आपको पता होना चाहिए कंफर्मेशन में, वो होती है डायहेड्रल एंगल। आइए बताऊं आपको कि डायहेड्रल एंगल क्या होता है। बेसिकली डायहेड्रल एंगल होता है, इट इज द एंगल बिटवीन टू इंटरसेक्टिंग प्लेन्स और हाफ प्लेन्स। केमिस्ट्री में अगर मैं बात करूं तो इट इज द क्लॉकवाइज एंगल between two planes formed by 3 atoms each having 2 common atoms। मैं इस इथेन में थोड़ा सा चेंज करती हूं, ये 2 हाइड्रोजन्स को चेंज करके एक को मैंने ग्रीन लगा दिया, आई होप आपको क्लियर विजन आ रहा हो, और एक को मैंने ऑरेंज लगा दिया, राइट। अब आप देखें, ऑरेंज कार्बन फ्रंट कार्बन बैक, अगर फ्रंट बैक नहीं तो C1 C2 हम बोलें, दैट वुड बी इजियर टू कम्युनिकेट। सो ऑरेंज C1 C2 ये तीनों मिलकर एक प्लेन बना रहे हैं। सेम वे ग्रीन C2 C1 ये मिलकर भी एक प्लेन बना रहे हैं। अब इस समय जब मैं आपकी तरफ इसे दिखाई मोड़ रही हूं इसको कैमरा की तरफ, तो आप देख रहे होंगे कि ऑरेंज और ये 2 ब्लैक का प्लेन और ग्रीन और इन 2 ब्लैक का प्लेन
ओवरलैप कर रहा है। और उन दोनों के बीच में अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द angle between these two, clockwise rotation, clockwise direction, so definitely angle between these two planes at this particular arrangement is 0. so यहां आप बोलेंगे डायहेड्रल एंगल कितना है, 0. अब अगर मैं इसे थोड़ा रोटेट करती हूँ, 60 की तरफ ले जाना चाह रही हूं, अब आप देखिए ऑरेंज ब्लैक ब्लैक ये एक प्लेन है, ग्रीन ब्लैक ब्लैक ये दूसरा प्लेन है। इन दो प्लेन्स के बीच में, ये मैं अपने हाथ से बनाने की कोशिश कर रही हूं, ये देखें आप, ये दो हाथों के बीच में इस समय जो एंगल आ रहा है, ये हाथ जो है एक प्लेन फॉर ऑरेंज और एक फॉर ग्रीन, तो ये जो एंगल आ रहा है ये कहलाएगा डायहेड्रल एंगल। हमने इसे पेपर पे या स्क्रीन पे भी बनाने की कोशिश करी है। देखें मैंने यहाँ पर फ्रंट को ABC, बैक कार्बन को XYZ 3 सबस्टेंट दिए। इस पर्टिकुलर डायग्राम में मैंने एंगल बनाया है, प्लेन्स पहले डिस्कस कर लूं। येलो से मैं बता रही हूं A कार्बन एंड कार्बन इनके बीच बना हुआ प्लेन, और ग्रीन से बता रही हूं X कार्बन और कार्बन के बीच बना हुआ प्लेन। सो इस पर्टिकुलर समय जो ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये रेड से हमने थीटा बताया है, दिस थीटा इज द डायहेड्रल एंगल इन दिस पर्टिकुलर डायग्राम। in this particular figure, dihedral angle between A and X अगर आपसे पूछा जाए तो it is 60 degree। वहीं पर अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए what is the dihedral angle between A and Y, then it is 180 degrees, राइट क्योंकि प्लेन चेंज हो जाएगा, डाउन साइड आ जाएगा। सो फॉर स्टेबल कन्फर्मर डायहेड्रल एंगल बिटवीन बल्की ग्रुप शुड बी मैक्सिमम पॉसिबल। अभी तक तो हमने इथेन की बात करी तो 3 और 3 सारे के सारे सब्सटेंट हाइड्रोजन थे, पर अगर हम हाइड्रोजन हटाकर मिथाइल या क्लोरीन या ब्रोमीन कोई भी सब्सटेंट इंट्रोड्यूस करना शुरू करते हैं, तो वो कन्फर्मर जिसमें जो सबसे बड़े ग्रुप हैं इंडिविजुअली ऑन फ्रंट एंड बैक कार्बन्स, उनको जितना दूर हम दूर से दूर रख पाए वो कन्फर्मर ही सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। करेक्ट। सो मूविंग नेक्स्ट, डायहेड्रल एंगल इन एन एक्लिप्स्ड कन्फर्मर आपको समझ आ ही गया होगा कि इज 0, एंड इन स्टैगर्ड दिस वी आर टॉकिंग पर्टिकुलरली अबाउट इथेन 60। अगर किसी मॉलिक्यूल में सब ग्रुप्स अलग अलग हैं तो आपको बोलना पड़ेगा कि डायहेड्रल एंगल आप किस दो के बीच में पूछ रहे हैं। इन केस इफ क्वेश्चन डजंट सिग्निफाई और डजंट नोटिफाई अस कि किस पर्टिकुलर दो ग्रुप के बीच में डायहेड्रल एंगल पूछ रहे हैं, तो आप डिफॉल्ट जो सबसे बड़े या बल्कि ग्रुप्स हो उनके बीच के, उनके प्लेन्स के बीच के एंगल्स को आप डायहेड्रल एंगल के तौर से कंसिडर करते हुए सवाल को आंसर करें। So let's move to conformation of butane. Now butane, as you can see, कार्बन की काउंट बढ़ गई है 1 2 3 4। Yes, you can draw a conformation for first and second carbon also, वो भी हम बना सकते थे, लेकिन डिफॉल्ट जो कंसिडर होगा कंफर्मेशन वो कौन सा कंसिडर होगा, बिटवीन C2 एंड C3। हमें कौन सा कंफर्मेशन कंसिडर करना होता है, C2 और C3 के बीच में, और C2 और C3 के बीच में हम जो कंफर्मेशन कंसिडर करते हैं वो ये देखिए C1 C2 C3 C4। तो मैं इसके बीच में भी रोटेशन करके अलग अलग कंफर्मेशन की बात कर सकती हूँ, बट हमें अभी जो हम कर रहे हैं इट इज बिटवीन C2 एंड C3, इनके बीच में रोटेशन किया जा रहा है और अलग अलग अरेंजमेंट पाए जाएंगे। आइए तो इनके बीच में रोटेशन करके हमें टोटल 6 अरेंजमेंट्स देखने को मिलते हैं। करेक्ट। ये 6 अरेंजमेंट्स कैसे और क्या होते हैं मैं आपको एक सेकंड दिखा ही देती हूँ, देन हम कॉपी पर वापस आ जाएंगे, स्क्रीन पर वापस समझ लेंगे। जस्ट गिव मी अ सेकंड टू अटैच द 2 hydrogens and there it is ready. So this is our C2 C3, this center one. I hope you can see ये eclipse न्यूमैन की बात कर रही हूँ, फ्रंट कार्बन और बैक कार्बन eclipse है। फ्रंट कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन और एक ये बड़ा सा मिथाइल है, जो इस समय हम ऑरेंज यूज कर रहे थे, प्रीवियस केस में वही लगा हुआ था, हम चाहें उसे वापस व्हाइट कर दें, ये मिथाइल है। और ऐसे ही बैक कार्बन के पास भी 2 हाइड्रोजन और मिथाइल,
ये सबसे पहले क्या अरेंजमेंट हो सकता है इसमें? सबसे पहले इसमें डेफिनेटली अरेंजमेंट हो सकता है एक्लिप्स्ड एंटी। इस समय जो अभी जो आपके हाथ में इमीडिएट है वो ये अरेंजमेंट है, दैट इज टोटली अपोजिट एंटी अरेंजमेंट, मोस्ट स्टेबल, क्योंकि आगे वाले का सबसे बल्कि इज मिथाइल, पीछे वाले कार्बन का सबसे बल्कि इज मिथाइल। सो इस अरेंजमेंट में दे आर एग्जैक्टली 180 degrees away from each other. This is the maximum distance I can maintain. So this anti-conformer is the most stable for butane, right? If I start rotating it, I rotated it to eclipse. As you can see that हाइड्रोजन के पीछे हाइड्रोजन अब छुप रहा है, राइट? ये फ्रंट मिथाइल के पीछे बैक हाइड्रोजन, और ऐसे ही हाइड्रोजन के पीछे मिथाइल। ये अरेंजमेंट ये 2 है, इसे हम कहते हैं पार्शियली एक्लिप्स्ड। एक्लिप्स तो है लेकिन अभी मिथाइल के पीछे मिथाइल नहीं आया, सबसे बड़ा ग्रुप एक दूसरे के पीछे नहीं आए हैं, तो इसे पार्शियली एक्लिप्स कहते हैं। ये वर्ड यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, पार्शियली एक्लिप्स्ड। ये 2 है उसमें, और 6 भी है, ये वाला 6 है ना, 6 अभी आएगा। फिर हम रोटेट करें, अब हमें मिला जब दोनों मिथाइल एक दूसरे के 60 के एंगल पर है ना, एंटी जैसा है लेकिन एंटी जितना स्टेबल नहीं हो सकता, क्योंकि bulky groups are now at 60. See, you can see the distance is coming close for the substituent hydrogen also. So इनमें repulsion तो निश्चित होना ही होना है, right? So these conformations are called gauge. ये भी 2 हो सकते हैं, 2 पॉसिबल, एक 3rd और एक 5, ये 3rd और एक ये 5। अब आ रहा है सबसे अनस्टेबल, सबसे खतरनाक, और ये है फुल्ली एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन। ये फ्रंट मिथाइल के एग्जैक्टली पीछे मिथाइल आ रहा है, दोनों बल्कि ग्रुप एकदम पड़ोस पड़ोस, ये देखिए कैसे इनमें टक्कर और रिपल्शंस देखने को मिलेंगे, और इसलिए ये स्ट्रक्चर होने वाला है सबसे अनस्टेबल। इसे हम कहते हैं फुल्ली एक्लिप्स्ड। दिस इज द मोस्ट अनस्टेबल। मोस्ट अनस्टेबल मतलब कंट्रीब्यूशन हो जाएगा इसका सबसे कम, और पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी इसकी सबसे ज्यादा, करेक्ट? अब ये जब वापस हम उसी डायरेक्शन में रोटेशन करते चले जाएं, तो अगेन हमने कहा था कि एक और गाउच आने वाला है 5, फिर से वापस एक पार्शियली एक्लिप्स, और वापस हम एंटी पर पहुंच जाएंगे। तो 1 से 6 से वापस आप रोटेट करेंगे तो you'll again have a cycle from 1 to 6 like that. तो जब तक हम वापस रिपीट ना हो गए, हमने उसे रोटेट करते रहना है। सो ये थे कन्फर्मर्स ऑफ ब्यूटेन। नाम एक बार दोबारा बोल लूं, 4 is fully eclipsed, 3 and 5 are gauge, 2 and 6 are partially eclipsed, और जब मिथाइल एग्जैक्टली पीछे वाले मिथाइल के 180 डिग्री अवे होता है तो मोस्ट स्टेबल anti-conformer is formed. Now, order of stability, as we have already discussed, सबसे ज्यादा anti, then gauge, then partially eclipsed. Fully eclipsed is most unstable, right? जो मोस्ट अनस्टेबल उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा, यहां पर हमने एनर्जी डायग्राम उसी तरीके से ड्रॉ करा है। तो ये जो है 180, ये जो पर्टिकुलर है, दिस इज द फुल्ली एक्लिप्स्ड। Okay, and remember this 180, don't confuse this x-axis पे लिखे हुए angles by dihedral angles. They are not dihedral angles. They are angle of rotations. आप जहां से शुरू करेंगे वहीं से ये डायग्राम बन जाएगा। मैंने शुरुआत करी है फर्स्ट अरेंजमेंट टू बी एंटी, एंटी से 60 पे रोटेट करा, सो आई विल हैव दी पार्शियली एक्लिप्स्ड, इसलिए एनर्जी उसकी 16 किलो जूल्स एंटी से ज्यादा। देन फिर से रोटेट करा, तो विथ रिस्पेक्ट टू दिस स्टार्ट एंटी 120 के रोटेशन पर हम गए हैं, तो गाउच कंफर्मेशन मिला जिसकी एनर्जी एनटी से 3.8 किलो जूल्स पर मोल। फिर से याद दिला दूं, ये पर मोल है, पर मॉलिक्यूल, ये बहुत कम नेग्लिजिबल वैल्यू होने वाली है, इसलिए रोटेशन एक कंटिन्यूअस फिनोमेना होगा। हाँ, टेम्परेचर घटाने और बढ़ाने के साथ एक नॉर्मल इक्विलिब्रियम की तरह इस पर इफेक्ट आएगा जरूर, लेकिन ये रुकेगा कभी भी नहीं, राइट? तो ये इस तरह से हमने एनर्जी डायग्राम ऑफ ब्यूटेन बनाया। रिसेंट लास्ट 4 इयर्स में ही एक बार डायरेक्ट क्वेश्चन आया था कि कन्फर्मर्स ऑफ ब्यूटेन देकर उन्होंने पूछा कि विच वन इज द मोस्ट स्टेबल। ब्यूटेन मतलब ये न्यूमैन बने हुए थे ऑप्शन में, और पूछा विच वन इज द मोस्ट स्टेबल। I think it is very obvious for you now. Moving to one important note regarding derivatives of butane if asked.
देखो ये X और Y अगर मिथाइल हो जाएंगे तो ये मॉलिक्यूल अभी के अभी वापस ब्यूटेन में चेंज हो जाएगा। बट अगर ये मिथाइल ना होकर कोई और ग्रुप हुए, जैसे अगर ये दोनों OH हो गए तो इथिलीन ग्लाइकॉल हो जाएगा, ये दोनों COH हो गए तो ये डाइकार्बोक्सिलिक एसिड सक्सेनिक एसिड हो जाएगा, एंड सो ऑन। ये अलग अलग ग्रुप भी हो सकते हैं, वो दोनों ग्रुप समान या डिफरेंट हो ये भी हो सकता है। लेकिन मेंस में हमें जो सिर्फ एक ही पॉइंट की जरूरत है कि अगर ये X और Y इस तरीके के ग्रुप्स हुए, इस तरह से उनमें एटम्स हुए कि दे आर कैपेबल ऑफ इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग, तब आप इन मॉलिक्यूल्स के लिए मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर का आंसर NT नहीं देंगे और आंसर हो जाएगा गाउच कन्फर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल हमने नीचे बना ही रखा है इथिलीन ग्लाइकॉल। इन केस ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल आप देख सकते हैं ये H बॉन्डिंग मैंने बनाई है, फ्रंट OH और बैक OH, इन दोनों के बीच में इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग हो जाएगी। H बॉन्डिंग होना मतलब एनर्जी रिलीज करना, एनर्जी रिलीज करना मतलब सिस्टम में स्टेबिलिटी लाना। सो इस पर्टिकुलर कंडीशन में जब फ्रंट X और Y बैक Y के बीच में इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग हो सकती हो तो मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर विल देन बी गाउच कन्फर्मर। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई H बॉन्डिंग, कोई अपोजिट चार्जेस अट्रैक्शन नहीं है, इनफैक्ट वो बड़े हैं साइज में, बल्कि हैं, इनमें रिपल्शंस हैं, देन आंसर्स इज NT विल बी द मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर ऑफ सच मॉलिक्यूल। करेक्ट। तो इसी के साथ हमारा कन्फर्मर हुआ खत्म। अब हम आगे बढ़ते हैं कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म। और कॉन्फिगरेशनल मैंने बताया आपको कि इसमें दो होते हैं, एक है ज्योमेट्रिकल और एक है ऑप्टिकल। जब भी कोई क्वेश्चन पूछे हाउ मेनी डिफरेंट स्टीरियो आइसोमर्स फॉर दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला, दिस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल आर देयर, आप ऐसा आंसर करें, उसकी काउंट, उसका नंबर बताएं। तो एज अ रूल वी डू नॉट कंसिडर कन्फर्मर्स while counting those different stereoisomers because they are totally interconvertible और उनको आप सेपरेट कर भी नहीं सकते, तो उनको आप कंसिडर नहीं करेंगे। टोटल स्टीरियो आइसोमर्स के काउंट के अंदर आप सिर्फ ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल को ही कंसिडर करते हुए आंसर फ्रेम करेंगे। सो बी वेरी केयरफुल। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो कि क्या हमें कन्फर्मर लेना है, तो आंसर इज नो, कन्फर्मर नहीं लेना है। गिव मी अ सेकेंड टू ड्रिंक वाटर। ओके, कमिंग बैक। सो ज्योमेट्रिकल isomerism, when two molecules have restricted rotation about a bond or set of bonds. restricted bond में रोटेशन हो ही ना सकता। जैसे ये जो आपके सामने इस समय है, ये इथीन बनी हुई है और देखें ये इथीन के दो कार्बन के बीच में हमने ये डबल बॉन्ड बना रखा है। अब मैं चाहूं भी तो ये रोटेशन नहीं कर सकती, जो अभी हम थोड़ी देर पहले यहाँ सिंगल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन कर पा रहे थे, यह पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह की बात हमने करी है कि देयर इज अ कंडीशन ऑफ रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। हमारे सिलेबस में ये रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन आपको ऑर्गेनिक के अंदर दो जगह खास तौर से ध्यान देना है, एक ये इथीन या अल्कीन्स के अंदर और दूसरा साइक्लो अल्केन्स के अंदर भी देयर इज अ स्टेट ऑफ रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, रोटेशन नहीं हो सकता है उनमें भी। अगेन लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने साइक्लोपेंटेन बनाया, ये देखिए साइक्लोपेंटेन मैंने बनाया है, अब मैं इसमें रोटेट कर ही नहीं सकती विदाउट ब्रेकिंग कोई पर्टिकुलर बॉन्ड। हाँ, अगर मैं इस बॉन्ड को ब्रेक करूं और फिर रोटेट करूं तो हो सकता है। अब अगर ऐसी कंडीशन में जब हमने कहा कि आप इसमें रोटेट कर ही नहीं सकते, अगर यहां पर मैंने कोई ग्रुप्स कहीं पर एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन या डायरेक्शन में रिजिडली प्रेजेंट बताए होते, तो वो आपस में इंटर कन्वर्ट नहीं हो सकते थे। क्या आप देख पा रहे हैं? ये देखिए, ये मेरे पास मैंने दो ऑरेंज और दो वाइट इस तरह से डिस्टेंस करे। अगर अभी आप देख रहे हो तो ये साइक्लोपेंटेन के प्लेन के रिस्पेक्ट में ये दोनों ऑरेंज और दोनों वाइट अपोजिट डायरेक्शन में है। अब अगर मैं चाहूं कि दोनों ऑरेंज एक साइड आ जाएं और दोनों व्हाइट इस प्लेन के रिस्पेक्ट में एक साइड आ जाएं, तो मैं रोटेशन करके नहीं ला सकती, देयर इज नो चांस। हाँ, अगर मैं यहां पर बॉन्ड ब्रेक करूं और फिर कोई तरह का रोटेशन करूं,
राइट, और ये इस तरह से आपस में एक साइड आ सके, then it is a possibility. But without bond breakage, I cannot bring them on the same side. That is what we are talking about, restricted rotation. और ये अगर आपको समझ आया हो, इथीन का आपको रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन समझ आया हो, तो सेकंड पॉइंट क्लियर हो जाएगा कि ड्यू टू दिस पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, if there are two different spatial arrangement of atoms, जो मैं यहां डिस्कस कर रही थी कि ये दो ऑरेंज अपोजिट साइड हैं, अगर एक दूसरा मॉलिक्यूल दुनिया में एग्जिस्ट करता और जिसमें ये दोनों ऑरेंज एक तरफ और ये वाइट एक तरफ होते, तो वो बिल्कुल अलग होता. आपको लग सकता है कि इट इज वेरी मच सिमिलर टू दिस, बट दे आर डेफिनेटली नॉट आइडेंटिकल, बिकॉज दोनों ऑरेंज एक ही साइड होना इज नॉट पॉसिबल फॉर द प्रीवियस वन दैट आई वाज शोइंग. ये इस तरह से रोटेट होकर अब अपोजिट साइड नहीं जा सकता, वो अपोजिट वाला सेम साइड नहीं आ सकता. इसी तरह से अगर इस इथीन के अंदर मेरे पास पहला केस, मैंने अगर एक ही कार्बन पर ये दोनों ग्रीन्स लगा दिए इस तरीके से, अब ये रोटेशन है या नहीं कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि इस रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के एक ही तरफ दोनों एटम्स थे, बाद में भी रहेंगे. रोटेट हो भी गया होता तो भी ये अरेंजमेंट होता, तो इसमें ज्योमेट्रिकल नहीं है. पर अगर मैं व्हाइट और ग्रीन अलग अलग एटम्स पे ऐसे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, अब जो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन साइट है उससे दोनों ग्रीन एक ही तरफ होना इस केस 1, या फिर दोनों ग्रीन इस रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन साइट के आर पार अपोजिट तरफ होना इस केस 2, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है. दूरी डिस्टेंस में चेंज आना चाहिए, एग्जैक्टली 180 हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि साइक्लिक केसेस में आप एग्जैक्टली 180 नहीं देखेंगे. ये कंपैरेटिव दूरी होनी चाहिए. ट्रांस जैसे आप कहेंगे उसमें दूरी ज्यादा होनी चाहिए ग्रुप्स में, और सिस में कम होनी चाहिए. कितनी ये कुछ भी डिफाइन नहीं है. सो एंड देयर शुड बी टू डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स ड्यू टू दिस रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, देन द टू अरेंजमेंट्स आर कॉल्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, और इस फिनोमेना को हम बोलने वाले हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. 2020 में कोइंसिडेंटली अगेन ज्योमेट्रिकल 2 या 3 बार पूछा गया और एक ही तरह का सवाल पूछा गया है. Which of the following molecule shows geometrical isomerism? As I just exhibited you कि कैसे आप चेक करेंगे, उसी तरीके से हम इसे पेपर पे भी चेक कर सकते हैं. 2-methyl 2-pentene. सबसे पहले फटाफट इसका स्ट्रक्चर बना लिया करें. 2-pentene 2-methyl. अब देखिए जैसे मैंने दो ग्रीन्स एक ही पर लगाकर बताए थे, वैसे यहाँ पर क्या हो गया है, दो मिथाइल्स एक ही पर आ गए. दो मिथाइल्स आ गए हैं तो इसमें ज्योमेट्रिकल नहीं हो सकता. चलिए सेकंड बनाती हूँ. 4-methyl 1-pentene. 1-pentene 1 2 3 4. अगेन यहाँ तो दोनों हाइड्रोजन आने वाले, दो ग्रुप्स अगर सेम आ गए हैं डबल बॉन्ड पे तो ये ज्योमेट्रिकल नहीं दिखा सकता. मूविंग टू थर्ड केस. थर्ड क्या है, 4-methyl टेंट 2-ene. आइए बना लेते हैं. 2-ene 1 2 3 4. व्हाट डू यू से, पॉसिबिलिटी लग रही है, क्योंकि अब इस डबल बॉन्ड पर एक H, एक मिथाइल, एक H और एक ही आइसोप्रोपाइल ग्रुप प्रेजेंट है. ये आंसर होना चाहिए. फोर्थ भी चेक कर लें हम. 2-methyl pent 1-ene. ये अगेन ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि आपको दिख रहा होगा कि कॉर्नर वाला जो कार्बन है, ये जो कार्बन है अगेन इस पर दो हाइड्रोजन आइडेंटिकल हैं. सो आंसर इज थर्ड. सो इस तरह का डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया. अब जो आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आ रहा है ये थोड़ा सा डिस्प्यूटेड है. एनटीए ने एक ही आंसर दिया जबकि इसके दो आंसर्स होने चाहिए थे. विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल शोज ज्योमेट्रिकल. अभी अभी मैंने आपको साइकिल में भी ज्योमेट्रिकल हो सकता है ये बात समझाई. यहां पर आते हैं. इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल फर्स्ट के अंदर जब दो ग्रुप्स हैं ही नहीं जो sp3 हैं, तो यहां नहीं हो सकता है. अब ये वेज है या डैश है कोई फर्क नहीं, इसमें ज्योमेट्रिकल नहीं है. सेकंड पर आती हूं. सेकंड के कैसे ज्योमेट्रिकल के केसेस हो सकते हैं, एनटीए ने आंसर हमें ये दिया है. डबल बॉन्ड C, एक तरफ H एक तरफ Cl,
एक तरफ CH3। अब देखिए इसके अबाउट एक केस हो सकता है H and CH3 आर ऑन द सेम साइड, और एक केस हो सकता है Cl and CH3 आर ऑन द सेम साइड, राइट। सो ये डबल बॉन्ड के अबाउट आप क्लियरली देख पा रहे हैं बंटवारा, तो यहाँ पर ज्योमेट्रिकल हो सकता है। आंसर 2 होना चाहिए, एनटीए ने अप्रूव भी किया, आंसर 2 है। आइए आगे बढ़ते हैं। हमेशा सारे ऑप्शंस चेक करने की आदत डालें। CHCl, अब इसके डबल बॉन्ड में इधर और इधर ये दोनों ग्रुप्स पूरी तरह से आइडेंटिकल हैं, कोई चेंज नहीं आ रहा है, यहाँ ज्योमेट्रिकल नहीं है। आगे बढ़े फोर्थ पर। ये जो आइडेंटिकल ग्रुप वाला कॉन्सेप्ट मैंने कहा, उस ही तरीके से शायद एनटीए ने 4 को रिजेक्ट कर दिया कि यहाँ पर ज्योमेट्रिकल नहीं है, लेकिन यहाँ ज्योमेट्रिकल बिल्कुल है, क्योंकि ये जो दो sp3 कार्बन से अटैच्ड मिथाइल्स हैं, ये केसेस बिल्कुल हो सकते थे कि ये दोनों वेज पर हो, या एक वेज और एक डैश पर हो। तो जो हम बात कर रहे थे कि दोनों क्लोरीन सेम साइड या अपोजिट, वैसे दोनों मिथाइल सेम साइड या अपोजिट, ये दो केसेस हो सकते थे, इसलिए दिस इज अ disputed. I don't know why they didn't change the key to 2 and 4. Both should have been answered, but you should know the correct answer. So correct answer should be 2 and 4. Next question, which of the following molecules show geometrical isomers? आइए फर्स्ट वन में देर इज नो पॉसिबिलिटी, दो CH3 एक ही कार्बन पे, इट इज एज गुड एज कि 2 ग्रीन्स ऑन द सेम कार्बन ऑफ इथीन। या इस साइक्लोपेंटेन में मैं दोनों हाइड्रोजन एक और दोनों ऑरेंज एक पर लगा दूं, तो रिलेटिव डिस्टेंस किसका किससे दूर हो रहा है ये आप बता नहीं सकते, इसलिए इस फर्स्ट वन में ज्योमेट्रिकल नहीं है। सेकंड में ज्योमेट्रिकल है, सेम पॉइंट। कैसा? सेकंड में ज्योमेट्रिकल मैं ड्रॉ कर देती हूं कि ये दोनों CH3 या तो वेज पर हो, या एक CH3 वेज और एक डैश पर हो, तो सेकेंड इज एन आंसर। थर्ड अगेन आंसर नहीं है, क्योंकि डबल बॉन्ड के अबाउट मेरे पास इस रिंग में कोई वेरिएशन नहीं है, so yes, there is no geometrical in third. Same way, no geometrical in fourth. In fifth, there is again a possibility, क्योंकि अगर मैं डबल बॉन्ड के अबाउट देखूं तो ये क्लोरीन, दोनों क्लोरीन इस डबल बॉन्ड के अबाउट सेम साइड भी हो सकते हैं, और ये डबल बॉन्ड के अबाउट अपोजिट साइड भी बन सकते हैं, तो ये इसके दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो सकते हैं। सो आंसर कुड बी फिफ्थ also, right? This is not any particular question of past mains, but just a revisionary or a practice question. Now, जब आपने जान लिया कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आप कैसे चेक करेंगे, अब हम बात करते हैं कि जब एक मॉलिक्यूल के दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं, उनमें क्या क्या प्रॉपर्टीज में वेरिएशन आ सकता है। तो यस, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स विल ऑलवेज हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। मैं एग्जाम्पल 2-ब्यूटीन को लेकर ये नीचे बता रही हूं आपको। जैसे फर्स्ट, डायपोल मोमेंट ऑफ अ सिस इज ग्रेटर देन ट्रांस। मैं इस चीज को बोली कि ये मैं 2-ब्यूटीन को लेकर बता रही हूं, क्योंकि अगर ये ग्रुप्स अलग अलग तरह से अपने वेक्टर्स को डायरेक्ट करें तो ये पॉइंट चेंज भी हो सकता है। अब आप देख सकते हैं कि प्लस से माइनस की तरफ डायपोल, प्लस से माइनस, तो ट्रांस में एक कैंसल आउट हो जाएगा, 0। इसमें आपको एक रिजल्टेंट वेक्टर दिखेगा, सो डायपोल मोमेंट ऑफ सिस इज ग्रेटर देन ट्रांस। बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली proportional to the dipole moment, as the cis is having higher dipole moment, so it will also have a higher boiling point. Melting point is totally independent of dipole moment. Melting point depends only on packing in solid state. ट्रांस क्योंकि ज्यादा सिमेट्रिकली अरेंज होता है, इसलिए ट्रांस की पैकिंग ज्यादा कॉम्पैक्ट होती है, ज्यादा क्लोज हो सकती है, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ
ग्रुप्स कैसे लगे हैं, सेम साइड वेक्टर डायरेक्ट करने वाले, अपोजिट साइड, किस तरीके के, बट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ट्रांस इज ऑलवेज ग्रेटर देन सिस। ये सभी तरह के जीआईज के लिए वैलिड होगा। जीआई बोले तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। और अगर मुझे वाटर सॉल्युबिलिटी, यस आई रिमेंबर दैट अल्कीन्स आर नॉट वाटर सॉल्युबल, बट इफ slight comparison is still to be done, then let me tell you that water में solubility जो होगी, that is directly proportional to dipole moment. So again, cis will be greater than trans, right? So GIs will have different physical properties. They can have different chemical properties also, but that is not in our syllabus. So let us move further. Again, a question which was asked in recent mains was the most polar compound among the following is. देखें, यहाँ पर आंसर जो है वो थर्ड है. As you can see, the resultant vector are added, and so third one is going to be the most polar. बाकी सभी में या तो कंसिडरेबल डायपोल होगा ही नहीं, और अगर है बॉन्ड डायपोल है तो वो रिजल्टेंट एक दूसरे को कैंसल करता हुआ है, तो कम होता चला जाएगा. ये एक पर्टिकुलर पॉइंट विच आई डोंट एनकरेज मच फॉर यू कि आप इस चीज का उपयोग करें, बट yes, as an information I would like to just share. Calculation of total number of GI having n number of double bonds capable of showing GI, where n is the number of double bond जो geometrical isomerism दिखा सकते हैं. आपको सबसे पहले मॉलिक्यूल में यही चेक करना है कि इनमें कितने ऐसे डबल बॉन्ड है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दर्शा सकते हैं, एग्जिबिट कर सकते हैं. 2n फॉर अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स, मतलब जैसे Cl, CH, डबल बॉन्ड CH, CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2. अब इस मॉलिक्यूल के अंदर डबल बॉन्ड 3 है, लेकिन ये वाला डबल बॉन्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखा सकता, 2 हाइड्रोजन सेम है. सो मेरे पास 2 ही डबल बॉन्ड है जो जीआई दिखा सकते हैं, और ये मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल है, क्योंकि एक प्लेनर मॉलिक्यूल को जब आप एक के ऊपर एक उठा के ऐसे अंदर ही अंदर, हाँ, बीच में से मोड़कर फोल्ड कर सकते हो, तब आप उसे कहेंगे सिमेट्रिकल. अब इसमें अगर मैं इस जगह से इसको फोल्ड करूं, कपड़ों को कैसे अपन फोल्ड करते हैं, वैसे पेपर को कैसे फोल्ड करते हैं, तो ये CLH और ये 2H, सो दे आर नॉट सिमेट्रिकल, राइट? पलट एक दूसरे को फोल्ड करके सेम चीजें नहीं आ रही हैं. सो ये Cl और H, यस, दिखाएगा GI, और ये भी साइड दिखाएगी. सो इसका आंसर होगा 2^2, 4 केसेस पॉसिबल. तो अगर ऐसी समानता नहीं है, ऐसी सिमेट्री नहीं है मॉलिक्यूल में, तो डायरेक्ट आंसर n नंबर ऑफ साइड, 2^n 4. 2^n इज द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स. अगर मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है, जैसे अगर जो लास्ट मॉलिक्यूल हमने कहा उसी में मैं बात करूं, Cl, CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH और Cl, है ना? GI भले ऊपर नीचे हो सकता है, Cl और H एग्जैक्टली ऊपर ना आए, बट ग्रुप स्ट्रक्चर वाइज आर आइडेंटिकल. मैंने इसे नीचे इसलिए लिखा क्योंकि मैंने यहां पर देखा कि ऑड नंबर अगर हो n की वैल्यू, तो मैं कैसे फॉर्मूला 1, 2 एंड 3, ये तीनों ही बॉन्ड्स दिखा सकते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. अब इसके जो पॉसिबल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हम रिपोर्ट करेंगे. 2^n is 3, so 3 minus 1 plus 2^3 minus 1 by 2. So that is 2^2 plus 2^2 by 2, 1. So answer is 4 plus 4 plus 2, that is 6 total geometrical होने चाहिए. अब देखने में आपको लग सकता है 2^3 8 होने चाहिए, लेकिन 8 नहीं होंगे, है ना, क्योंकि कुछ केसेस ओवरलैप आइडेंटिकल होंगे, सो हमें एलिमिनेट करने होंगे हमारी काउंटिंग से. अगर इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स हैं जो ज्योमेट्रिकल दिखा पा रहे और मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल हो, तब कैसे? तो Cl, H, डबल बॉन्ड H, C, डबल बॉन्ड H, C, Cl और H. अब आप देखें फिर वही बात कि सिस्टम सिमेट्रिकल है. मैं 3D सिमेट्री की बात नहीं कर रही हूं, मैं 2D लिखकर उसे पेपर की तरफ फोल्ड करूंगी.
तो दोनों कॉर्नर सिमिलरली सब्स्टिट्यूटेड हैं, सेंटर सिमिलर हैं, यस। अब मेरे पास दो बॉन्ड हैं, तो मैं यहाँ लिखूंगी 2 raised power 2 minus 1 plus 2 raised power 2 by 2 minus 1. I think you can solve it and we'll get the answer. है ना? 2 raised power 1 plus 2 raised power 0. So the answer is 3. So there will be total 3 geometrical isomers for this particular molecule. इसी के साथ हमारा स्ट्रक्चरल, कन्फर्मर और ज्योमेट्रिकल का डिस्कशन यहाँ खत्म होता है। पार्ट 2 ऑफ आइसोमेरिज्म में हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म डिस्कस करेंगे, लेकिन आप हमेशा ये ध्यान रखें कि ये बहुत बड़े टॉपिक्स होते हैं। सो हमारा एंटायर डिस्कशन और वॉट एवर लेक्चर आई एम शेयरिंग विथ यू इज टोटली बेस्ड ऑन लास्ट 4 to 5 years ऑफ पास्ट मेंस पेपर। क्या पूछा गया और क्या नहीं, क्योंकि जाहिर है अगर हम सारा करने गए तो आपकी भी एनर्जी और समय सिर्फ वेस्ट ही होगी। सो दीज आर ऑल इंपॉर्टेंट कंटेंट्स, प्लीज रिवाइज देम थरोली, do refer your notes also. If you have any doubt, you can write to us either on our mail ID or you can write your doubts in the comment box. If it would be possible for me to share my solutions or my answers, I'll definitely do. अगर आपको हमारा ये पूरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो खत्म करने से पहले आप उसे लाइक जरूर करें और हमारे इस चैनल के बारे में अपने दोस्तों को जरूर बताएं। Thank you.